unmute and read immediately than waiting for the others. We will not waste time. We can profitably use the time to study much more. और बहन आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है बहुत ही जल्दी में इस वचन को पढ़ने में हमारी मदद किया बिना समय गवाए हुए। मेरा ये आपके लिए सलाह है कि आप में से किसी को भी जो वचन मिलता है उसको आप जल्दी से जल्दी पढ़ने में मदद करें ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। All right. Now, this particular verse is a very important verse because this shows the confidence that David had in the Lord God Almighty. और ये वचन जो है दाऊद का वो भरोसा जो प्रभु यीशु मसीह में दाऊद का था, इस बात को ये वचन उस बात की पुष्टि करता है। Now, this verse, in the first two sentences, there is one word that is mentioned twice, compassed. Compassed meaning surrounded by or filled with. That is what the meaning of compassed is. And this word is used two times in the first two phrases of this verse. और इस वचन में हम लोग एक विशेष रूप से एक बात को देखते हैं और वो ये है कि दो बार वो शब्द दाऊद इस्तेमाल करता है। उसका मतलब कि वो शब्द कौन सा है? वो शब्द ये है कि उन्होंने मुझको घेर लिया है। घेरना, ये शब्द दो बार इस्तेमाल किया है दाऊद ने। You see, compassed means confront or encircled, which means you are in the midst of something devastating which will destroy you. और मेरे प्यारों, घेरने का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी के द्वारा आप बीचों बीच फंस गए हैं और उन्होंने आपको घेर लिया है। इसका मतलब कि आप वहां से निकल नहीं सकते। Now, the same sentence is repeated two times in this verse. They compassed me about, and then he says, yea, they compassed me about, which means it is so very important to understand what situation David was at that moment of writing the psalm. और मेरे प्यारो, इस भजन को खास तौर से हमको देखना है और इस चीज को हमें समझना है कि ये वाक्य क्यों दाऊद इस्तेमाल करता है कि मुझको घेर लिया है और मुझे घेर लिया है। इसका मतलब दाऊद एक किसी विशेष बात की ओर या विशेष अवस्था की ओर इशारा करते हैं जो हमें समझने की जरूरत है कि दाऊद कैसी परिस्थिति में फंस गया था। You all remember and recollect, although it's about 3 weeks since I took the last study, I hope you all remember the background of how David was right from the time he was conceived in his mother's womb till he was treated very badly by his father until the time prophet Samuel came and anointed him. I have brought out very minute details of what happened in the life of David. I hope each one of you remember that. यद्यपि 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन मेरी ऐसी आशा है और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप लोग अभी भी दाऊद के बैकग्राउंड को और उसकी पृष्ठभूमि को आप लोग याद रखे होंगे, आपको याद होगा, क्योंकि अध्ययन के दरमियान मैंने आपको उस दाऊद के जीवन से कुछ ऐसी विशेष बातें आपको बताई थी और इतनी छोटी और छोटी से छोटी और गहराई रीति से हमने उस अध्ययन को किया था। इसलिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको वो बैकग्राउंड याद होगी। And this psalm he is writing after he's come out of that situation. He's recollecting and he's writing his experiences that he has gone through so far in his life till the time of writing the psalm. तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि दाऊद कैसी अवस्था से में रह करके इस वचन को लिखता है। इसका मतलब यह है कि दाऊद जो है अभी उस परिस्थिति से जिसमें वो पड़ा था, जो हमने बैकग्राउंड के दरमियान सीखा था, वहां से निकल करके बाहर आता है और उसके बाद फिर इस वचन को वो लिखता है। You see, many a times when we, as children of God, although we know that we have a living God, we have a God who lives even today, we have a God who's a supernatural God, we have a God who can perform miracle. Although we know that,
Yet, in times of trouble, when trouble surrounds us, what do? We go seeking help of others. We go seeking the support of influential people. We do many things without much depending on the Lord. That is how it seems to others when they look at the way we try to wriggle out of that situation. और भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, इससे जो है परेशानी तब क्या परमेश्वर उसका निर्णय किया जाए, हम लोगों पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को की ओर मुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों की ओर हम लोग आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं, जो प्रसिद्ध हो, जाने माने हो, लोगों में जो है उनकी गहरी पहचान हो, ऊंचा ओहदा हो। कहने का मतलब है कि हम ऐसी अवस्था में क्या करते हैं कि परमेश्वर की बजाय मनुष्यों की ओर देखने लगते हैं। Deepu, sometimes your voice is breaking. Are you traveling or you are away from any network zone? Uncle, मैं I'm not traveling, but I'm staying in at one place. Okay. Okay, That is because you're, nearby the highway. A road is there, yeah, so okay, okay, good vehicles are enough. passing. Good enough. Sometimes your voice is breaking, not continuous. That's why I asked you. Doesn't matter, you can continue. You see, uh, look at the second half of this verse. Despite David being in a very difficult situation. No one, I think, would have been in such a situation as how David was. The second part of that verse talks about his confidence in the Lord, and that is what our lesson is today. और मेरे प्यारों, यद्यपि इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि दाऊद कैसे भयानक और विकराल परिस्थिति में पड़ा था और उससे घिर गया था, उसके बावजूद भी हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्यारों कि उस वचन का, भजन संहिता 118 का 11 का दूसरा भाग क्या कहता है? वो हमारे आज का पाठ है और आज के लिए सीख है। वो क्या है? वचन 11 का दूसरा भाग क्या लिखा है? परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। You see, what does this mean when David says, "But in the name of the Lord I will destroy them"? What, why, under what, why would David want to write like that? और अभी देखिए मेरे प्रियो, दाऊद ऐसा क्यों लिखना पड़ा? दाऊद को क्या आवश्यकता पड़ी उसको ऐसा लिखने की कि मैं जो है परमेश्वर के या यहोवा के द्वारा, उन यहोवा के नाम के द्वारा उन्हें निश्चय नाश कर डालूंगा, ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी दाऊद को? You see, the reason why David is writing like that is he is telling us very loudly that it is not that I can say this because of my father's influence, meaning many of us depend on our father's influence. My father knows this person, my father knows that person. I will use his name, I will use that man, that uncle's name, and I will tell them, like, I'm the son of so and so. I'm that person is my father's friend, and through that we try to influence and come out of the situation that we are in. Many of us do that. We depend on people. और मेरे प्रियो, हम लोग ऐसी अवस्था में क्या देखते हैं? इस ऐसी अवस्था में हम लोग ये देखते हैं कि जब कभी भी हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और ऐसी चुनौतियों से जब हम घिर जाते हैं, समस्याओं से हम घिर जाते हैं, तो हम लोग इस चीज का फायदा उठा करके ऐसा सोचते हैं और हम लोग परमेश्वर पर भरोसा ना रखते हुए हम लोगों पर ज्यादा भरोसा रखने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मान के चलिए, यदि मेरा पिता का बहुत ऊंचे तक पहुंच है और बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, तो क्या होगा जब कभी भी मैं ऐसी परेशानियों से घिर जाऊंगा, तो मैं अपने पिता का हवाला देते
हुए। क्या आप जानते हैं, मेरे पिता से उनका परिचय है, इतने बड़े आदमी के साथ वो उठते बैठते हैं, उनका यहाँ तक पहुंच है। और क्या आप उन्हें जानते हैं, मैं उनका बेटा हूँ या उनका मित्र हूँ। इस प्रकार से हम लोग सोच करके क्या करते हैं, उनका हवाला दे करके इस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, ना कि परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए। You see, that is what is happening in the world today. When people get stuck, what they do, they use the name of influential people and say, I'm so and so's son or so and so's nephew. I'm so and so's friend's son. I know that person well. I know this person well. They try to make a call and get out of this. That is what is happening in this world. Now, David is saying, I am not dependent on any of my father's influence. That is what David is trying to say through that second half of that verse. लेकिन मेरे प्रियो, जब हम उसी वचन का 11वीं आयत का दूसरा भाग पढ़ते हैं, तो जो दाऊद हमें क्या सिखाता है, क्या सिखाना चाहता है? दाऊद हमें सिखाना चाहता है कि जिस तरह से वर्तमान में लोग, कोई अपने पिता का हवाला देता है, कोई अपने भाई का, कोई अपने मित्र का, कोई अपने बहन का, कोई अपनी माता का। क्या आप जानते हैं, उनसे मेरी इतनी पहचान है, मैं उनका उनका फलाने फलाने का बेटा या बेटी हूँ। आपने जानते रहे, इस प्रकार का उनका हवाला देकर के हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान में ऐसी परिस्थितियों से निकल करके आना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद का दृष्टिकोण से यदि हम देखें, क्या कहता है दाऊद? दाऊद कहता है कि मैं जो है किसी पर आश्रित नहीं हूं, वरन मैं परमेश्वर यहोवा पर ही आश्रित हूं। Now, not only that, there's another thing also which David is trying to say, which I understood is he's saying that it is not because of my experience in the forest or in the wilderness that I am getting out of all these dangers. Many a times we think we have all the experience we have. We have gone through different situations in life. God has taken us to different circumstances. So I have the experience. So I am capable of handling any situation. I can overcome any situation because I'm a well experienced man. This is also what David is not doing. और मेरे प्यारों, इस बात को ध्यान दीजिए कि दाऊद ऐसा भी नहीं करना चाहता है और ना ही कर रहा है, जब वो ऐसा कहता है कि मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूं, मेरा पिता इतना बड़ा आदमी है, मेरे घर में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा ऐसा हम करते हैं, इतना हमारी पहुंच है। ये सब बातों को भी दाऊद नहीं करता है, ना ही उनका आश्रय लेता है और ना ही उनमें विश्वास रखता है। You see, not only that, what I was saying, Deepu, is that David is not depending on his experiences that he has gone through in the forest or wilderness and saying that because of my experience, I will come through all the present dangers or harms that are coming by. Many of us, are very confident about our experience. Oh, because of our experience, oh, I will face that situation. Oh, I'll face this situation because I've already experienced facing those situations. That also, David is saying that I am not dependent on any of my experiences in the forest or wilderness to come out of any crisis in my life. You see, that's the second thing which David is confessing here through that statement. मेरे प्यारों, हम क्या देखते हैं यहाँ पर? दाऊद ने जो है, ना केवल वो अपने किसी व्यक्ति पर, वरन वो इस बात को कहना चाहते हैं कि मैं मेरे जीवन के अनुभवों पर भी आश्रित नहीं हूं। जो मैंने जंगल में और भेड़ों को चराते हुए जो अनुभव मुझे मिले हैं, ताकि मैं ऐसी परिस्थिति से निकल करके बाहर आ जाऊं, उन पर भी विश्वास और भरोसा दाऊद नहीं करता है, वरन वो कहता है कि मैं सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। Absolutely. You see, the second portion of that verse is a confirmation that David puts his entire confidence in the name of the Lord. He says, in the name of the Lord, I will destroy whatever opposition comes before me. You see, two things in this verse. David is not depending on his influence that he can use in a situation.
nor is David depending on his experience that he can count upon to come out of that situation. He is not depending on these two things. He is only depending on the name of the Lord, which is powerful enough to destroy any crisis that comes in his life. Look at the confidence of David. मेरे प्यारो, आप एक बार दाऊद के भरोसे पर एक बार नजर तो डालिए। प्रियो, देखिए कैसी अवस्था में दाऊद है, और वो ना तो किसी व्यक्ति पर भरोसा रखता है, ना ही वो किसी बड़े और ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति पर, ना ही उसके जीवन के अनुभवों पर जो उसे जंगल में और भेड़ बकरियों को चराते हुए उसको मिले। लेकिन मेरे प्रियो, वो भरोसा देखिए उसका कितनी रीति से वो दावे के साथ कहता है, घोषणा करते हुए कि मैं निश्चय ही यहोवा के नाम से उनको नाश कर डालूंगा। मेरे प्रियो, उसका अन भरोसा को देखिए कितना अद्भुत है प्रियो। You see, that is the level of confidence that David has on his Lord God Almighty. And dearly beloved, that is the confidence we must have on the God whom we serve. और मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यही वो भरोसा दाऊद का था। वही मैं और आप जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं, या उसके पुत्र और पुत्री हैं, उसकी संतान हैं, परमेश्वर आज दाऊद के द्वारा हमें यही संदेश देना चाहता है। हमारा भी दाऊद के जैसा भरोसा होना है परमेश्वर पर। You see, we cannot put our confidence on the men of this world. We cannot put our confidence on ourselves. We can only put our confidence on the Lord our God. That is what this verse teaches us. और ये वचन मेरे प्रियो हमें यही सिखाता है कि ना तो हम किसी व्यक्ति पर भरोसा रख सकते हैं, ना किसी वस्तु पर भरोसा रख सकते हैं, और ना ही अपने जीवित और जीवन के अनुभवों पर आश्रित रह सकते हैं। लेकिन हमें आश्रित होना है तो केवल और केवल जीवित परमेश्वर यहोवा पर हमें आश्रित होना है। You see, dearly beloved, the world teaches us that we are living in a society because a human being is made to live in a society. So one person is dependent on the other. So what happens is one man is dependent on another man always. That is what the society teaches us. But the word of God teaches us to be dependent on only the Lord God Almighty and no one else. And that is what is being emphasized by David in this verse 11. और मेरे प्रियो, इस वचन में देखिए दाऊद का कहने का मतलब क्या है। मेरे प्यारो, हमारे आज वर्तमान में जहां पर हम रहते हैं, हमारे समाज आज हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे पर आश्रित होना है, एक दूसरे पर भरोसा रखना सीखना है और सिखाना है। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, इस वचन के अनुसार यदि हम देखें, तो परमेश्वर यही सिखाते हैं आज हमें कि हमें मनुष्यों पर नहीं, अपनी खुद की खूबियों पर, लियाकतों पर और योग्यताओं पर और अनुभवों पर भरोसा नहीं रखना है, लेकिन हमें भरोसा रखना है तो केवल प्रभु यहोवा पर। Now, listen to me very carefully. When we depend on God, what God does is God uses men in the same society to help us. The problem with us is instead of going to God, we go directly to men and seek their help. That is the mistake. And that is what David is pointing out in verse 11. Don't depend on men. Or don't depend on your experience, depend on only the Lord God. So, once again, let me say this, there's nothing wrong in depending on men, but our first, foremost dependency should be only on our Lord God. He will use people in the same society to help us instead of we going directly to men and thinking that, oh, God only wants me to go to these men to seek the help. You see the difference? और मेरे प्रियो, मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग बड़ा ध्यान दे करके सुनिएगा। मेरे प्यारों, हम जहां पर रहते हैं, जिस सोसाइटी में या समाज में हम लोग रहते हैं, ऐसी सोसाइटी और समाज में हमारी गलती क्या है, हमारी समस्या क्या है, पता है आपको? हमारी समस्या ये है
कि हम लोग परमेश्वर पर भरोसा ना रखते हुए हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो क्या होगा? उसका प्रतिफल, उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा प्यारो? हमें उसका परिणाम ये मिलेगा कि जो समाज में जो लोग हैं वो हमें क्या करेंगे? वो ही लोग हमारी मदद के लिए आगे आ जाएंगे मेरे प्रियो। Yeah, very well said. Okay. Now let's move on to the next two verses, verses 12 and 13 of Psalm 118. आइए हम 118 का 118 का अब हम 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की नया घेर लिया है, प्रांतों कांटों की आग की नया वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने Thank you. मुझे बड़े Yeah, thank you, sister. You see, David is addressing these verses to his father. देखते हैं कि इन दोनों वचनों में वो कहता है अपने पिता से। You see, verse 13, he's saying, Thou hast thrust sore at me that I might fall. और वचन 13 का पहला भाग में जो है, तूने मुझे बड़ा कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने Meaning David is saying, looking at his father, he's saying, You thought that I will fall and I will be destroyed, but the Lord helped me. That's what he's telling his father. और मेरे प्यारों, दाऊद क्या कह रहा है? यद्यपि हे पिता, तुमने मुझे ये धक्का तो दिया था ताकि मैं गिर पड़ूं, लेकिन हे मेरे प्रियो, तूने मेरी सहायता की है, उठा लिया है, तूने मुझे गिरने नहीं दिया। You see, brothers and sisters, there are people waiting around us to see how we are destroyed. मेरे प्यारों, इस चीज को हमें नहीं भूलना है कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी रहते हैं जो इसकी ताक में रहते हैं कि हम कब गिरें और कब हम गिर करके हमारा नुकसान होता है या नाश होता है। Not only that, there may be people around us thinking that we will be destroyed. We will be annulled, means we will be destroyed from this whole world. और मेरे प्यारो, इसका मतलब क्या है कि लोग ऐसे भी हैं हमारे आसपास और इसकी ताक में लगे हुए हैं कि हम पूरी तरह से कब नाश हो जाते हैं, बर्बाद हम कब होते हैं, पूरी तरह से हमारा जीवन में नाश ही नाश हो जाता। उसकी फिराक में, उसकी ताक में, उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। But never be discouraged even for one day, because you and I have a God who will help us. लेकिन प्रियो, हमें इस चीज को ध्यान देना है कि हमें बिल्कुल भी, यद्यपि एक क्षण के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें गिरने से बचाता है, उठाता है। You sit back and think for some time, think for a few seconds. People are not going to help you, but there is a God, the God that you worship. He is definitely going to help. या एक एक क्षण के लिए आप रुक जाइए और सोचिए, इस पर मनन कीजिए। आप मेरे प्रियो, आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर के को आप विश्वास और भरोसा रखते हैं जो आपको कभी गिरने नहीं देगा, यद्यपि लोग तो चाहेंगे। You see, brothers and sisters, sometimes we wonder as to why don't I get any help from anyone? Why is no one helping me at that time where I need all the help? Have you not thought like that? क्या मेरे प्यारो, हम में से किसी ने भी इस प्रकार से कभी सोचा है कि मुझे जो जब जिस भी मदद की आवश्यकता पड़ती है और वो मदद मुझे नहीं मिलती है, क्या क्या आपने कभी भी इस प्रकार से सोचा है?
And you don't know the reason why no one wants to help me when I need so much of help. और आप इसका कारण नहीं जानते हैं कि जब आपको सहायता की जरूरत है लेकिन आपको कोई मदद करने के लिए नहीं है। Maybe some of them have refused to help you. हो सकता है कुछ लोगों ने आपको मदद करने से इनकार कर दिया हो। There may be some people who have the strength to help you, but they don't want to help you. और मेरे प्रियो, कुछ भी ऐसे लोग भी होंगे जो मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी मदद करने के योग्य भी हैं, लेकिन फिर भी You मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। You are thinking in your mind, oh, I know that brother, that sister, he's got the capacity, the capability to help me, but he or she is not helping me. Why is it so? All the doors from all sides are closed. Why are they closed? Have you ever thought like that? क्या मेरे प्रियो, आपने इस प्रकार से कभी भी सोचा है बैठ करके कि यद्यपि वो भाई या बहन मदद करने के योग्य है, वो कर भी सकता है, और मुझे उस पर ऐसा विश्वास और ऐसी अपेक्षा है कि वो जरूर मदद करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपने कभी भी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं? कभी आपने ऐसा सोचा है? ऐसा जीवन में आपके अनुभव आया है? Have you thought that all the doors have been closed and no one wants to help me? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और कोई मुझे मदद नहीं करना चाहता? I confess before God and you, many times I have thought like that. Many times it has happened in my life that I have felt all the doors are closed. No one wants to help me. I'm going through such a difficult situation. Why has God allowed this? I have thought myself many times. और मेरे प्यारो, अंकल ने कहा है कि मैं इस चीज को अंगीकार करता हूं कि कई बार, एक बार नहीं वरन कई बार मैंने इस प्रकार से सोचा है और मेरी ऐसी विचारधारा हुई है, बनी है कि मैंने कुछ लोगों से उम्मीद रखी कि वो मेरी मदद के लिए तैयार होंगे, लेकिन कोई भी उनमें से तैयार नहीं हुआ, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। You know, brothers and sisters, the reason why? प्यारे भाइयों बहनों, आप में से जानते हैं कि ऐसा वैसा क्यों हुआ? You know why? Because God does not like man to help you. The Lord himself has decided to help you. Understood? ओह मेरे प्रियो, देखिए कितनी अद्भुत बात है। ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके जीवन में ऐसा अनुभव है तो याद रखिएगा कि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है कि मनुष्य, तुच्छ मनुष्य तो तुम्हारी मदद करने के लिए खड़े हों, क्योंकि जीवित परमेश्वर तुम्हारी मदद करने के लिए सक्षम है, काफी है। You see, brothers and sisters, your help is going to come from heaven. प्यारे भाइयों, याद रखिएगा कि परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से तुम्हारी मदद आने वाली है। If all the doors on earth are closed to you, the doors of heaven are always open for you. Your help is going to come from that rock of salvation, the Lord Jesus Christ. आमेन। और मेरे प्रियो, इस चीज को याद रखिए कि आपकी जो मदद है वो पर यद्यपि धरती से यदि बंद हो गई हो, लेकिन स्वर्ग से आपकी मदद आने वाली है। वो परमेश्वर की ओर से, यद्यपि मनुष्य की ओर से तुम्हारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार है स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह का, जो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। वो तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। Look at that verse 13 and see what David says. See what David says. You thrust sore at me so that I will fall. और मेरे प्रियो, वर्स 13 अंकल। Yeah, that's that verse 13, no? That the second, yeah, verse 13. Verse 13. और वचन 13 का You thrust sore at me so that I will fall. He's telling his father.
या और दाऊद अपने पिता से कह रहा है 13 का दूसरे भाग में कि तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया था कि मैं गिर पड़ूं। You see, did Saul help him? Did King Saul help him? आप सोच करके देखिए, क्या साउल राजा ने उसकी मदद के लिए आया? Did prophet Samuel help him? क्या भविष्यवक्ता सामुएल ने उसकी मदद की है? Or did the elders of that place of Bethlehem help him? क्या उस बैतलहम के जो प्राचीन लोगों ने आकर के उसकी मदद किया? Oh no, the Lord helped me. That's what he's saying. ओ मेरे प्रियो, उनकी बजाय में वो एक ही बात कहता है कि वो परमेश्वर यहोवा ने आकर के मेरी सहायता की है। Listen, brothers and sisters, King Saul had the capacity to help him. Prophet Samuel had the influence to help him. The elders of Bethlehem could have told others to help him, but he did not go to them. He did not ask them. They also did not help. But the only person who knew him and helped him is who? His Lord God Almighty. और मेरे प्रियो, आपने कभी भी इस प्रकार से सोचा? यद्यपि उस नगर के जो बड़ा भविष्यवक्ता सामुएल है, जो सबका आदर के व्यक्ति था, उसके पास उसको मदद करने के लिए क्षमता थी। यद्यपि उस यरूशलेम के सारे प्राचीनों के पास उसकी मदद के लिए क्षमता थी, योग्यता थी, वहां के नगर के लोगों में से, प्रणियों में से भी, उसके घर के लोगों में से भी, सबके पास वो योग्यता थी कि दाऊद को मदद करें। लेकिन प्रियो, कोई भी व्यक्ति उसके लिए मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। That is your confidence and my confidence, brothers and sisters. No one in this world, whether they are believers or unbelievers, we need to depend on no one, being believers or unbelievers. The only person we depend on is the Lord God Almighty, and He will help, because David says, "But the Lord helped me yesterday, today, forever." Jesus is the same. So if that Lord Jesus helped David, He will help you and me today. और मेरे प्रियो, इसलिए देखिए कि यदि वो परमेश्वर यहोवा ने यदि दाऊद को मदद की है, तो अवश्य ही कि वो मुझे और आपको भी मदद करेगा। हमें इस दुनिया में, इस धरती पर रह करके किसी भी व्यक्ति पर आश्रित हो या अपेक्षा करते हुए या उनसे मदद की उम्मीद लगाते हुए अपने जीवन को नहीं जीना है, वरन पूरी तरह से हमें हमारे उस परमेश्वर पर आश्रित रहना, उस पर विश्वास और भरोसा करना है। You see, let's read verses 14 and 15 of the same psalm. आइए हम इसी भजन का 14, 15, 14 और 15 आयत को पढ़ लेते हैं। परमेश्वर मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। Thank you. Now, before that, in verse 13, while I was referring to another paraphrased version to understand that verse, one translation says of verse 13 that you pushed me violently. You know, pushing is one thing, but pushing violently, when you push someone violently, what does it mean? You want him to fall and hurt himself. That is the meaning of pushing violently. So one Bible translation of verse 13 says, you pushed me violently, meaning David is telling his father, you pushed me violently so that I will fall and hurt myself. और मेरे प्रियो, आप देखिए, किसी को भी धक्का देना वो बात एक अलग चीज है,
और एक अलग शब्द है, लेकिन अंकल ने इसका दूसरी बाइबल में और दूसरे अनुवाद में जब इसको इस पर नजर डाली, उस पर ध्यान से देखा और उस वचन को अनुवाद को जब उन्होंने देखा, तो एक आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है एक अनुवाद में कि तूने मुझे बलपूर्वक धक्का दिया है। इसका मतलब जानबूझ करके ऐसी उम्मीद करते हुए कि ये अवश्य ही गिर जाए। That is right. You see, the father pushed David violently. But you know what the Lord did? The Lord valiantly worked for David, meaning victoriously he worked for David. When his father violently pushed David, the Lord valiantly worked for David. That is our God. और मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यद्यपि परमेश्वर यहोवा ने दाऊद को बलपूर्वक उसको क्या कर दिया, रुक जाए, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उसे वो ही बलपूर्वक उसको उठाया है, उसको गिरने से बचाया है, नाश से बचाया है। Yeah, that translation is beautiful because it tells us a very valid truth. It says, people around you are working violently against you so that you fall, you hurt yourself. But remember, the Lord is valiantly there to working for you, to help you come out victorious. और मेरे प्रियो इस चीज को याद रखिएगा कि जो भी आपके आसपास के आप गिर जाएं और आग हो जाएं, लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, आपके लिए आपका परमेश्वर यहोवा उल्लास पूर्वक कार्य कर रहा है कि वो आपको नाश होने से या गिरने से बचाए। All right, let's read verse 17. आइए हम लोग एक वचन और 17वीं आयत को पढ़ लेते हैं। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। This is a wonderful verse of affirmation, a wonderful verse that you can always tell yourself, talk to yourself about this verse. और मेरे प्रियो, ये वचन जो है बड़ा ही पूर्वक एक आशा भरा ये वचन है जो आप हमेशा अपने आप से इस वचन को कह सकते हो। You see what David is saying? David is saying, you thought that I will die, isn't it? When you pushed me, you thought that I will die. You thought either a bear or a lion will kill me. That is why you sent me to those different places where only bears and lions will come. You thought that I will die. That is why you sent me to all these places. You see what David is saying? लेकिन मेरे प्यारो, दाऊद का कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? वो किस ओर इशारा कर रहा है? वो ये कहना चाहता है कि हे पिता, आपने मुझे ऐसे स्थान में भेजा तो जरूर, आपने मुझे बलपूर्वक धक्का तो दिया कि मैं नाश हो जाऊं, कि मैं मर जाऊं, अर्थात आपने मुझे ऐसी ऐसी जगहों में जाने की अनुमति दिया कि जहां पर केवल भालू और शेर और जो फाड़ खाने वाले, नाश करने वाले जानवर आते हैं जो मनुष्य के जीवन घातक होते हैं। ऐसे में यदि मुझे भेजा तो जरूर, लेकिन मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। दाऊद का भरोसा देखिए प्यारो। You see, David, in this particular verse, it appears as if he's speaking out of ignorance. और मेरे प्यारों, ये वचन को देखिए, यहाँ पर इसका ऐसा लगता है कि दाऊद जो है परमेश्वर के out of ignorance. He thought that God had punished him because he was being sent to places where the lion and the bear comes. He thought that God is punishing him. Out of ignorance, he thought that.
और मेरे प्यारों, देखिए दाऊद ने जो है अज्ञानता के कारण ऐसा सोचा कि परमेश्वर ने मुझे धक्का दे दिया या परमेश्वर ने मुझे बलपूर्वक से धक्का दिया है ऐसे कि मैं मर जाऊं। अज्ञानता के कारण दाऊद ऐसा सोचता है। See, many a times when we go through difficult situations in our life, what do we think? Oh, God is allowing this in a purpose. God is allowing this for a purpose. Many a times we think that, but we fail to remember that our God is a good God. The difficulties that come in our life is not from God, but it is from Satan. We quite often forget that fact, and any problem then comes, we immediately, directly or indirectly, blame God. And that is out of ignorance. That is what this verse also speaks about, David's ignorance. और मेरे प्यारो, आप इस चीज को, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। हम कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की जब परिस्थितियां आती हैं या चुनौतियां, परीक्षाएं आती हैं, जब हम परेशानियों से घिर जाते हैं और हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से आया है, ऐसा साबित करने के लिए कि मैं कितना परमेश्वर पर आश्रित रखता हूं या भरोसा रखता हूं। यद्यपि प्यारों, हम अज्ञानता के कारण ऐसा सोचने लगते हैं क्योंकि सारी समस्याएं, सारी परीक्षाएं, सारी जो परेशानियां परमेश्वर की ओर से नहीं वरन शैतान की ओर से आती हैं, ताकि हम जो अज्ञानता के कारण ऐसा सोचने लगे कि परमेश्वर की ओर से आए हैं। But look at the confidence of David. Look at the affirmation of David. He's saying, I shall not die, but live and declare the works of the Lord. That should be our affirmative statement when we go through trials and difficulties. लेकिन मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि दाऊद के इस कॉन्फिडेंस को, भरोसे को और साहस को आप लोग देखिए, एक बार ध्यान पूर्वकता से उस पर ध्यान दीजिए और मन लगा करके सोचिए। वो क्या कहता है दाऊद? यद्यपि हे परमेश्वर, तूने मुझे धक्का तो दिया कि मैं मर जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा, लेकिन वचन 17 में क्या लिखा है? निश्चय मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा ताकि परमेश्वर के कामों का वर्णन। All right. Now, you see in verse 19, the next verse, Psalm 118, verse 19, David is expressing his desire before the people. And what is that desire? Read verse 19. और हम देखते हैं वचन 19 में जब आते हैं तो दाऊद अपनी इच्छा को लोगों के सामने प्रकट करता है, और वो इच्छा क्या है उसका? वचन 19 को हम पढ़ेंगे। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। And I've told you why David, I've told you the reasons, the background when I gave you to Psalm 118. This point also I covered, that David was until now was not able to enter the gates of the temple or the sanctuary because he was banned from coming even near the sanctuary or the temple. और मेरे प्रियो, इस चीज को मैंने आपको बड़े साफ रीति से इस बात को बताया था कि दाऊद को किस रीति से, यद्यपि उस मंदिर, परमेश्वर यहोवा के भवन या मंदिर के पास में आने के लिए भी उसको अनुमति नहीं थी, प्रतिबंध कर दिया था उसको वहां तक आने तक भी। यद्यपि जहां तक जो उस मंदिर का ओसारा है उस तक भी नहीं पहुंच सकता था दाऊद। You see, now look at his desire. You see, his innermost desire, the bubbling desire that he has is coming out when he's rejoicing. And see what he's saying in this verse 19. Look at his desire. लेकिन मेरे प्यारो, वचन 19 में जब हम आते हैं तो उस दाऊद की इच्छा को आप लोग यहाँ पर देखिए, वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है और उसकी इच्छा क्या है। वो उसके अंदर की गहराई, दिल की गहराई की इच्छा को वो प्रकट करते हुए कहता है, मेरे go ahead. मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। ये है दाऊद की इच्छा। You know, by this time, David has been anointed as the future king.
अभी हम इस बात को सभी लोग जानते हैं कि यहाँ तक दाऊद राजा भविष्य का इस्राएल का राजा करके अभिषेक कर दिया गया है। After David has been anointed, the very first thing he asks as his desire is not good food. ओ मेरे प्रियो, हम इस बात को सभी लोग जानते हैं कि दाऊद को भविष्य का इस्राएल का राजा करके नियुक्त कर दिया गया है और वो उसको अभिषेक कर दिया गया है और उसकी पहली इच्छा दाऊद की जो उसने प्रकट की है वो अच्छा भोजन, नॉट गुड फूड अंकल। Yes, not good. His desire is not good food. He is not asking for good food at all. और मेरे प्रियो, यद्यपि इतने सालों के कड़वेपन से अनुभव के साथ वो गुजरा जरूर है, लेकिन उसकी पहली इच्छा ये नहीं थी कि उसको अच्छा भोजन खाने के लिए मिले। He was not asking for a wonderful attire or dress. और उसके साथ साथ वो एक अच्छे कपड़े का या अच्छी पोशाक की उम्मीद नहीं रखा उसने। Or he was not desiring to take revenge on his brothers who tried to destroy him or kill him. और यद्यपि मेरे प्रियो, उसने अपने मन में कतई विचार नहीं लाया कि जिन्होंने उसको प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया, परेशान किया, उसके भाइयों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे बदला लूं, ऐसा कतई उसने नहीं सोचा अपने मन में। Oh, he never thought about all these things. His only one desire that we read in verse 19 makes David what David is and why we are studying about David. That is David's quality in verse 19. और मेरे प्रियो देखिए, दाऊद के क्वालिटी को देखिए, दाऊद की विशेषता को आप लोग देखिए, वो इन सब चीजों के बारे में उसने कदापि नहीं सोचा, ना ही उसने उनकी ओर ध्यान लगाया, लेकिन वो दाऊद का इच्छा क्या है, वही अध्ययन आज शाम के समय में हम लोग कर रहे हैं प्यारो। You see, whatever be the circumstances for David, his only desire was the Lord. This is why David is what he is. ओ मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्यारो, उसने दाऊद ने जो भी इच्छा परमेश्वर के प्रति रखी है, वही दाऊद राजा है जो उसने ऐसी इच्छा परमेश्वर के प्रति रखी है। Yeah, wonderful. Let's read the next verse 20. आइए हम लोग वचन 20 को पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 20, यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। All right. You see, now in Israel, the kings will be made to ride on the mules or donkeys. The kings of in Israel will be made to ride on the mules or donkeys. और मेरे प्यार, उन दिनों में इस प्रथा थी कि जिस किसी को भी जब अभिषेक होता था तो उनको पहले जो सवारी करने को गधा और या गधे का बच्चा दिया जाता था। You see, horses are banned in Israel. आप इस बात को कि You see, the Israelites are not supposed to breed horses. और यद्यपि आप देखिएगा कि इस्राएलियों को They're not supposed to breed horses. Deepu, I can't hear you. अभी आ रहा है? Yeah, now I can hear your voice was breaking. Now I can hear you. Can you hear me? Deepu, can you hear me? Hey, Deepu, did you hear me? I said in Israel. Deepu? Deepu? Deepu, can you hear me? We can't hear you at all.
हेलो। Deepak, can you hear me? We can hear you now. Now we can. मेरी आवाज आ रही ना? हेलो। Deepak? हाँ हाँ अंकल। Yeah, we can hear you now. बहुत सारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी। Yeah, I know. Now, what I was saying is, in Israel, they are not supposed to breed horses. और यद्यपि मेरे प्यारों, इज़राइल में इस प्रकार से परंपरा थी कि यहूदियों लोग भी घोड़ों को परवरिश करना या उनको रखना उनके लिए गवारा नहीं था। Yeah, donkeys are in majority in Israel. और गधों को अधिकतर वो लोग रखते थे और उनकी रखवाली करते थे। Generally, we look down upon donkeys, is it not? सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, गधों की ओर हम लोग देखते हैं। When we scold someone, how do we scold them? We scold them as you gada or you donkey. That's how we scold someone, is it not? यस अंकल। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी को हमको डांटना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे तू गधा है। You see, but for the Jews, the donkeys are very special animal. याद रखिए मेरे प्यारों कि यहूदियों के लिए गधा क्या है, एक बहुत ही विशेष जानवर है जो जिसको बड़े चाव से घर पे रखते थे वो लोग। You see, when the Lord Jesus Christ entered Jerusalem, in which animal did he enter? In which animal did he travel? He came on a donkey, isn't it? और मेरे प्यारों, A mule or a donkey. और यद्यपि प्रभु यीशु मसीह भी जब उन्होंने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया तो कौन से जानवर की सवारी किया उन्होंने? किसी घोड़े की सवारी नहीं किया, वरन गधे की सवारी। एक जो गधा था जिस पर कभी कोई ने सवारी नहीं की थी, उस गधे पर यीशु मसीह सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। You see, now David is mounted on a donkey and he's being taken to the tent of the tabernacle. और मेरे प्रियो देखिए, अभी दाऊद जो है ऐसे एक गधे पर सवार होकर के वो कहता है कि दाऊद उस मंदिर के भवन में बीच में जाकर के द्वार खोलने के लिए वो कहता है। Now, in the tabernacle, the Ark of the Covenant is there. और हम देखते हैं यहोवा का जो भवन है उसमें tabernacle, in the tabernacle, uncle? Yeah, in the tabernacle, the Ark of the Covenant, tambu ka, what is that? Covenant. वाचा का तंबू। Yeah. और जो संदूक है उसमें क्या है मेरे प्रियो? वाचा का संदूक। And everyone is following David. और हर एक व्यक्ति दाऊद के पीछे पीछे आ रहा है। And David is leading the entire multitude mounted on a donkey. So the entire Israel nation is now following David, who is now mounted on a donkey. और मेरे प्यारो देखिए कितनी अद्भुत बात है कि दाऊद यद्यपि उस गधे पर सवार होकर के आगे आगे जा रहा है और उसके पीछे सारा इस्राएल उसके पीछे पीछे चले आ रहे। इसका मतलब दाऊद अब इस्राएल का नेतृत्व कर रहा है एक गधे पर सवार होकर के। As David is approaching the temple, he sees the Ark of the Covenant kept in the tabernacle. When he sees that, he says the following verse 20, this gate of the Lord into which the righteous shall enter. और मेरे प्यारो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे ही वो दाऊद राजा मंदिर के नजदीक पहुंच रहा था, वहां पर जब उसने उस संदूक को देखा जिसमें वाचा का संदूक रखा गया था उस तंबू में, मेरे प्रियो वो कहता है यही वो द्वार है यहोवा का, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। And then in verse 21 he says, I will praise thee, for thou hast heard me and art become my salvation. और इसलिए वचन 21 में वो कहता है कि हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार ठहरा है। Look at the happiness when David sees the tabernacle, and look at what he's saying in verse 21 that we read just now.
और मेरे प्रिय, जिस वचन का इसको हमने अभी पढ़ा था उस पर एक बार ध्यान दीजिए। दाऊद राजा का जो भरोसा है उस पर अब उसका साहस को देखिए, वो क्या कहता है। वचन 21 एक बार फिर से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन है और मेरा उद्धार ठहर गया है। All right, I think we have crossed 8 o'clock, so let me stop here. God willing, Yes, sir. next week we will continue. Okay. Thank you very much. God bless you. I hope this study has been useful to every one of you. And thank you, Deepu. This, although you were in a very distant location, yet you managed to join for the translation. Thank you very much, and God bless you. God bless you all. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे को वचन 21 से हम लोग अगले मंगलवार को अपना अध्ययन को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से अंकल जी को कि आपने यद्यपि 3 हफ्ते के बाद में आए और आपने ऐसी उम्मीद की थी कि हम इस भजन का अध्ययन आज समाप्त कर देंगे, लेकिन प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। हम और भी कुछ सीखने को मिलेगा, और इसलिए हम इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम इस बात के लिए भी खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि अंकल जी को बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य प्रभु ने दिया है, जिसके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। और आज का वचन वास्तव में मेरे लिए बहुत ही स्ट्राइकिंग था, और मेरे एकदम आई ओपनिंग संदेश था जो अंकल ने बोला था कि दाऊद का भरोसा क्या है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मेरे प्रियो, 1 सेकंड।